Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. Today date is 28 August 2021 and I am teaching you chapter number 7. Name of the chapter is Protecting Plants and Animals. So let's do little recapitulation, student, what we have done in the previous video. So in the previous video we discussed the classification of animals, that is herbivorous animals, carnivorous animals, omnivorous animals and decomposers. Okay, after that we discuss food chain, the process of eating one organism by the another and getting eaten by another organism, that is known as food chain. After that, the topic which I covered in the previous video is that how the animal depends on plants for their food also and for shelter also. Next topic which I covered, that is the how human beings also depend on plants. Okay, so human being get their food like fruits and vegetables, cereals, oil, nuts. So these types of things the human being are getting from the plants. Fruit, vegetables, cereals मतलब अनाज होता है बेटा, oil and nuts means dry fruits, and they also provide us medicines. Okay, aloe vera, neem and tulsi, these are medicinal plants. Okay, lot of benefit of these plants in our life. Next, we also get how human beings are able to make the clothes. So we are also getting cotton from the plants. Okay, so how we make the clothes, we make the clothes with the help of the cotton, and from where we are getting this cotton, we are getting this cotton from the cotton plant. Okay, send rubber, paper, in the copies which you are writing, this paper is also a plant product. Okay, then rubber, this is also a plant, then the thing which we are getting from the plants. Timbers means the wood which are used for making the houses. So this thing also we are getting from the plants. Next is a plant give us oxygen, and as we know that oxygen is our living gas. Without oxygen we cannot survive, and in the same manner plants depend on animals also. Okay student, because animal release carbon dioxide in the process of uh, at the time of breathing, and this carbon dioxide is utilized by the plants for preparing their food. Next is the and plants also depend on animals for the dispersal of their seeds. Okay, for the proper dispersal of their seeds, this is the also reason animals help the plants in the dispersal of the seeds. Next, it also animals also helps in pollination. Insects like butterfly, bees help of flowers in pollination. So in this manner the process of reproduction take place in the plant. Okay, now the topic now which I will start in today video is the interdependence in the environment. So habitat, what is habitat? Habitat is a place where the animal live and the animal get enough food, and even he was protected from its enemies also. Okay, so you can also say that the natural home or the environment of a animal or plant where it lives and grow is called its habitat. So what is a habitat? Habitat, so the natural home or the environment
or the of an environment of an animal or plant, where it lives and grow, where it live and grow is called its habitat. Okay, now, so when we are talking about the habitat of the animals and plants, so different animals and plant live in different places. Some of the examples are given in your book, like the polar bears. So they live near the poles, which are very cold. Okay, so so the polar bear adopt the environment of that place. ठीक है, they live in that places which is very cold, so the polar bear adapt to themselves according to that conditions, and that is the reason that they have a fur on their body, क्योंकि वो बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं, इसलिए उनकी बॉडी वार्म रहे, इसके लिए उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, फर होते हैं. इज इट क्लियर? सो अनदर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ द पोलर बियर. Another example is the, in the animal it is given polar bear, and for the plant it is given cactus. So this plant adopt itself according to the environment of the desert. As we know that in the desert area there is no rainfall, or there is a very little rainfall. So this cactus is name of the plant. It adopt the environment of the desert, because only few plants which can survive in the desert area due to less rainfall. So these plants have a long roots. ठीक है, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं बेटा, इनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं. ठीक है, इनकी रूट्स लॉन्ग होती हैं जिससे कि वो अंडरग्राउंड वाटर ले सकें. ठीक है, सो जैसे कि कैमिल है, कैमिल ने भी अपने को डेजर्ट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया है, कैमिल ने भी. ठीक है, फॉर मैनी डेज इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. बहुत दिन तक भी कैमिल अगर वाटर नहीं पीता है तो भी मरता नहीं. हम एक दिन वाटर नहीं पियेंगे तो हमें लगेगा वी आर गोइंग टू डाई विदाउट वाटर. सो कैमिल ने भी, इसीलिए कैमिल को एज ए शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं. एज यू नो डैट कि सैंड बिकम वेरी हॉट. ठीक है, सैंड बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है हीट, सन की हीट से, बट द कैमिल कैन वॉक ईजिली. सो उस एनिमल ने, कैमिल ने अपने को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डेजर्ट के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को अडॉप्ट कर लिया है. ठीक है, इसी तरह जो डेजर्ट एरिया में प्लांट्स होते हैं, इनकी रूट्स बड़ी होती हैं जिससे ये अंडरग्राउंड वाटर ले सकें, और इन प्लांट्स ने भी अपने को डेजर्ट एरिया के अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है. ठीक है, so when we are talking about the, our environment has two components. ठीक है, our environment has two components, biotic and abiotic components. ठीक है, सो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं बेटा, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, so it is divided into two parts, that is biotic components and another is abiotic.
ठीक है। अगर जो हमारी इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो जैसे हमने क्लास 4th में चैप्टर नहीं पढ़ा था थिंग्स अराउंड अस, तो उसे हमने 2 पार्ट्स में बांटा था थिंग्स अराउंड अस को। बहुत से हमारी सराउंडिंग्स में ऐसी थिंग्स हैं जो क्या है, लिविंग है, और बहुत सी ऐसी हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो अब उसी चीज़ को हमने यहाँ पे 2 नाम दे दिए। इन्वायरमेंट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएगा और एबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएगा। तो बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल द लिविंग क्रिएचर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं हमारे प्लेनेट में वो आ जाएंगे, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में सारे नॉन लिविंग आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो बायोटिक कंपोनेंट, so let's write the definition of biotic components. So biotic components include biotic components biotic components include all the living creatures like human beings, animals, insects and plants. And next is the abiotic. So abiotic components include all the non living things like sun है, water है, एयर, सन, वाटर, एयर एक्स्ट्रा। ठीक है। सो ये हो गया बेटा। अब देख लो बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक। तो इन्वायरमेंट 2 पार्ट्स में, जैसे मैं तुम लोग के क्लास 4th में पढ़ा होगा थिंग्स अराउंड अस, तो उसे मैंने बताया था इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक में वो आते थे जो लिविंग उसमें थे, और एक वो आते थे जो नॉन लिविंग थिंग्स थे। ठीक है। तो अब इसी को हमने क्लास 5 में क्या किस हेडिंग में पढ़ा, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल द लिविंग क्रिएचर, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, इंसेक्ट्स एंड प्लांट, दे ऑल कम इन द बायोटिक कंपोनेंट्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स है क्या, एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लाइक सन, वाटर, एयर एक्स्ट्रा। और ऑलरेडी मैंने तुम लोग को प्रीवियस क्लास में बताया था कि लाइफ ऑफ द लिविंग थिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की लाइफ जो है नॉन लिविंग थिंग्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट। So without sunlight is the process of photosynthesis take place? So answer is no. So if there is no sunlight, then life is not possible. If there is no water, life is not possible. If there is no air, life is not possible. So what does it means? It means that whether the environment is divided into 2 parts. ठीक है, environment 2 पार्ट में डिवाइड है, एक लिविंग्स है, एक लिविंग्स है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के बिना लिविंग थिंग्स सर्वाइव नहीं कर सकते। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं बेटा वो नॉन लिविंग थिंग्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच विल कवर हियर इज द
human activities. Next topic of this chapter is the human activities. Human activities disturb the environment. Now see student, ह्यूमन एक्टिविटी डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट. सो हमारे अर्थ को स्पेशल प्लेनेट बोला गया क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. देयर आर अदर 8 प्लैनेट्स आल्सो, लेकिन द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज पॉसिबल दैट इज नोन एज आवर प्लैनेट, दैट इज अर्थ. तो इसको अर्थ को इसलिए स्पेशल प्लैनेट भी बोला गया है, या अर्थ को आप प्रीशियस प्लैनेट भी बोल सकते हैं सोलर सिस्टम का. इज इट क्लियर? सो इट हैज एवरी थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स नीड फॉर सर्वाइवल. ठीक है, लिविंग थिंग के सर्वाइवल में जैसे अभी हमने एनवायरनमेंट पढ़ा, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था. एक बायोटिक था, एक क्या था, एबायोटिक था. तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी अभी बताया कि बायोटिक की लाइफ एबायोटिक के बिना पॉसिबल ही नहीं है. मतलब लिविंग थिंग्स की लाइफ नॉन लिविंग थिंग्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है. तो लिविंग्स के लिए जितनी भी कंडीशंस हैं, इट हैज़ एवरीथिंग दैट लिविंग थिंग्स नीड फॉर द सर्वाइवल. और इट गिव अस वाटर है, एयर है, सनलाइट है, लैंड है, एंड सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हुई है. ठीक है, देखो लिविंग थिंग्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट नीड्स हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, वो सारी प्रेजेंट हैं हमारे प्लैनेट्स पे. ठीक है, एयर भी है, वाटर भी है, लाइट एयर है, वाटर है, लैंड है. सो ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग थिंग्स. अब देखो हाउ ह्यूमन एक्टिविटी डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट. ये कैसे, हाउ दिस प्रॉब्लम अराइजेस. दिस प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. डे बाई डे जो ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है बेटा, वो इंक्रीज ही होती चली जा रही है. सो व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीज, देन व्हाट्स हैपन, द डिमांड ऑफ द फूड इज आल्सो इंक्रीज. अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, आपके घर में 4 लोग हैं, अगर 10 लोग आ जाएंगे तो क्या 10 लोग 4 लोग का खाना खा सकते हैं? नहीं, ज़्यादा चाहिए ना, ज़्यादा लोग हैं. तो इसी तरह ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, व्हाट हैपन्स, we need the demand of the food is increase. So due to the increased demand of the food, what happens, the demand of the land is also increase. जब फूड हमें ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लोग हैं खाने वाले, तो उसको कल्टीवेशन के लिए हमें लैंड भी तो चाहिए ज़्यादा. और ह्यूमन बींग्स क्या रहते हैं, हाउसेस में रहते हैं, तो हमें अपने रहने के लिए भी हाउसेस चाहिए. तो इसके लिए भी हमें क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड्स को क्या करना है, फ्री करना है. तो हमने कैसे लैंड्स को फ्री किया, बाई कटिंग द फॉरेस्ट. सो बाई कटिंग द फॉरेस्ट वी हैव डन दिस. तो इस तरह हमने ट्रीज को इतना ज़्यादा काटा, एंड द कटिंग ऑफ द ट्रीज इज नोन एज अ डिफॉरेस्टेशन. इस तरह हमने अपनी इन्वायरमेंट को टोटली डिस्टर्ब कर दिया है. नेचर का बैलेंस जो है वो प्रॉपर नहीं रह रहा है. क्यों? देखो जब तुमने इतने ज़्यादा बेटा फॉरेस्ट ह्यूमन बींग्स ने काट दिए, तो एक तो पेड़ों को काटने से क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ. और ट्रीज ही एक ऐसे हैं जो कि ट्रीज कटने की वजह से एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो गई. ठीक है, लैंड पॉल्यूशन इंक्रीज हो गई ट्रीज के कटने से, क्योंकि ट्रीज ही हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं. ठीक है, जब ट्रीज नहीं होंगे तो एयर फ्रेश नहीं होगी, एयर क्लीन नहीं होगी. ठीक है, और अनदर थिंग है, हमने ऐसा करके बहुत से एनिमल्स के जो होम्स हैं, बहुत से एनिमल्स क्या है, आज एनिमल्स भी बहुत से लेस होती जा रही है, उनकी जनसंख्या भी. ठीक है, क्योंकि एनिमल्स के नेचुरल होम्स क्या थे, ये फॉरेस्ट थे. हमने फॉरेस्ट कट करना स्टार्ट कर दिए, तो डे बाय डे द पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इज आल्सो डिक्रीजिंग. सो इन दिस मैनर, ड्यू टू आवर एक्टिविटी, वी डिस्टर्ब आवर एनवायरमेंट. ठीक है,
वी आर कटिंग ट्री टू मीट आवर डिमांड विच हैज लेड टू डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोशन, ये मैंने बता दिया। और इसके साथ साथ एनिमल्स पे भी बहुत बुरा असर हुआ, क्योंकि एनिमल्स क्या है, नेचुरल होम्स हैं। किसके? वाइल्ड एनिमल्स के नेचुरल होम फॉरेस्ट हैं। अगर आप सारे पेड़ काट दोगे, देयर इज नो फॉरेस्ट, देन द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दीज वाइल्ड एनिमल्स आल्सो डिक्रीज डे बाई डे. So in this manner, due to the human activities, we have disturbed the environment. Okay, now after that there are some questions are given. Fill in the blanks question. Let do these questions also. True and false. True or false. First one is plants take in oxygen. Take in plants take in oxygen. Plants take in oxygen during the process of photosynthesis. So this is absolutely a false statement. Okay, so plant take which gas at the time of photosynthesis, or you can say at the time when they are preparing the food, that name of the gas is carbon dioxide. So this is a false statement. So question number 2, animals that eat other animals flesh, are known as herbivorous animals. So student, this is also a false statement, because herbivorous animal eat plants, and the animal that eat other animal flesh, that category of the animal is known as carnivorous animal. So this is also a false statement. Question number 3, there are two components in environment. There are two components in the environment. So yes student, this is a true statement. There are two components in the environment, that is abiotic and abiotic. Biotic includes all living creatures and like human being, plants, animal, insects, and abiotic includes all non-living creatures like sunlight, air, water, etc. Okay. Fourth question, plant depend on animal for carbon dioxide. Plants depend on animals for carbon dioxide. So this is a true statement student. This statement is true because plant depend on animal for carbon dioxide, because when human beings and animal breathe, they breathe out carbon dioxide, and this carbon dioxide is taken by the plants to prepare the food at the time of photosynthesis, when they prepare their food. So this is the true statement. Next, cutting trees on a large scale is known as afforestation. Cutting off
Cutting trees on a large scale is known as afforestation. So student, this is a false statement because afforestation means planting the tree. ठीक है, afforestation मतलब होता है पेड़ों को लगाना, planting the tree, और cutting of trees is known as deforestation. अभी जस्ट मैंने तुम लोग को बताया था, cutting of the tree is known as deforestation, and when we plant the new trees, that is known as afforestation. So next topic which we will cover in this chapter is the protection of forest. Okay, very good. Next topic is the protection of forest. Why there is a need to protect the forest? Due to human activities. क्योंकि पास्ट में सारी चीजें ठीक थी, एक समय था कि ह्यूमन बींग्स भी लाइक एनिमल्स, दे आर आल्सो लिविंग इन द फॉरेस्ट. सो एट दैट टाइम ऑल थिंग्स आर राइट, बट ड्यू टू लॉट ऑफ नाउ इन प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स ने अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना लिया है. ठीक है, सो ऐसा करने में हमने बहुत से जो नेचुरल थिंग्स प्रेजेंट थी नेचर में, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है. ठीक है, सो लेट डिस्कस प्रोटेक्शन ऑफ ए फॉरेस्ट. फर्स्ट पॉइंट, सो फॉरेस्ट इज फर्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. क्यों करनी चाहिए? क्योंकि फॉरेस्ट इज द होम. फॉरेस्ट होम किसका होम है? ये बर्ड्स का, insects and wild animals. ठीक है, is it clear? First point है forest is the home of a birds, insects and wild animals. That is the reason we should protect the forest. Second point is they help us to keep the environment clean. Second point, I am not writing the full point, I am just writing single word and explaining you. Environment clean. So how the trees help to clean the environment? Because see student, they take, when we breathe out, animals and human beings, when we breathe out carbon dioxide. So they take this carbon dioxide and release oxygen. In this manner they help to keep the environment clean. Okay, then third point, we do not cut the trees, because what is the reason? Due to cutting of the trees the problem arises, that is soil erosion. So what is the soil erosion? See, due to the trees, what is the function of the root? Root absorb water and minerals, and another function of the root is that the root binds the soil. वो मजबूती से soil को पकड़ के रखती हैं. क्या? प्लांट्स की रूट्स. अगर ट्रीज नहीं होंगे, नंबर ऑफ ट्रीज बहुत लेस होंगे, तो क्या होगा? सॉइल इरोशन की प्रॉब्लम आती है. क्योंकि जब एयर बहुत तेज चलती है ना, तो और या तो एट द टाइम ऑफ ए रेनी सीजन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ए रेनी सीजन और एट द टाइम व्हेन द विंड ब्लो, सो जे जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल होती है वो वाटर और एयर से वॉश्ड अवे हो जाती है, तो सॉइल की क्या फर्टिलिटी खत्म हो जाती है. इसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल इरोशन बोलते हैं. सो इफ द नंबर ऑफ ट्रीज, अगर ट्रीज बहुत ज़्यादा होंगी तो सॉइल इरोशन की प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, थर्ड पॉइंट यही दिया था. द रूट्स ट्री होल्ड द सॉइल, द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, दिस रिड्यूसेस सॉइल इरोशन. ठीक है, तो सॉइल इरोशन क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, एट द रेनी सीजन ड्यू टू द वाटर एंड ड्यू टू द ब्लो ऑफ ए विंड द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज वॉश्ड अवे, एंड इफ देयर आर नो ट्री प्रेजेंट, अगर ट्री प्रेजेंट नहीं होगी तो बेटा यही प्रॉब्लम अराइज होगी. ठीक है, क्योंकि ट्रीज की जो रूट्स हैं यही सॉइल को क्या करती हैं? बाइंड करके रखती हैं, पकड़ के मजबूती से. ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. So what is the fourth one? Fourth point, people also depend on forest.
Okay, another important for the forest is that the people also depend on the forest for the fooder for the cattles. ठीक है, सो पीपल आल्सो डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर द फूड है, फ्यूल भी मिलती है, क्योंकि आज ना हम लोग एलपीजी गैस पे खाना बना रहे हैं। ओल्ड टाइम में वुड इज यूज फॉर कुकिंग द फूड। सो अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट इज दैट forest is used for the fuel, fooder. Forest is used for the fuel, fooder, timber and leaf litter. Okay, so what is this fuel? We use wood from the forest for making the, for cooking the food, fooder for the cattle and animals, timbers means the wood which are used for making the houses, and leaf litter, this is used to make a manure, खाद बनाने के लिए। जो पेड़ों की पत्तियां सूख जाती हैं वो पेड़ों से गिर जाती हैं, तो ठीक है, इन ये जो फिर आफ्टर डैट ये सड़ के डीके हो के ये जो पत्ते होते हैं ये क्या है, सॉइल में ही मिक्सअप हो जाते हैं। इससे सॉइल की क्या बढ़ती है, फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, और कटिंग डाउन ट्रीज मेक टेकिंग अवे द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है कटिंग ऑफ ट्रीज। आपने ट्रीज को कटिंग की, कटिंग ऑफ ट्रीज, तो व्हाट प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज स्टूडेंट? कटिंग ऑफ ट्रीज से ये प्रॉब्लम अराइज हुई, जो नेचुरल हैबिटेट थे जो वाइल्ड एनिमल के, वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन भी क्या है, बहुत लेस होती जाती है। डे बाय डे उनकी पॉपुलेशन भी क्या है, बहुत लेस होती जा रही है। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।